Welcome to We Learn. This is session 6 of MIS. Today we are going to cover different topics like what is information management, what is a decision, how we can classify the decision making process into different categories, types of decisions, levels and decisions of information management, stages of decision making, models of decision making, and apart from this we are also going to cover how the manager can act as a nerve center for the information processing. How do managers use information to make decisions? What steps are basically covered at the managerial level to make the decision so that ultimately the problem should be resolved? What are the differences in the classical and behavioral models of managerial decision making? These are the topics that we are going to cover in the today's session. Information management. Information management is what basically it is the collection and management of information from one or more sources. Not only the collection, rather it's the distribution. हमारा जो information management system होता है ये different sources से data collect करने के ऊपर ही focus नहीं करता, rather ये different parts of the organization में data को distribute करने में भी highly focus करता है. Another definition of information management says that management means the organization of and control over the structure, whether it's processing and delivery of the information. हमारी मैनेजमेंट का पूरा कंट्रोल होता है ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पे, उसकी प्रोसेसिंग पे, एंड हाउ द इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू बी डिलीवर. नाउ द बेसिक गोल ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं, its basic intention as well as the goal is to increase the organizational information processing capacity and to reduce need for information processing. हमें हर चीज़ के लिए बार बार इनिशियल लेवल से एंड लेवल तक बार बार चीज़ों को प्रोसेस करने में अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करना पड़े, इसलिए हम कुछ रेडी टू यूज़ इंफॉर्मेशन को ऑलरेडी अपने पास अवेलेबल रखते हैं ताकि प्रोसेसिंग साइक्लिक टाइम जो है इट कैन बी रिड्यूस्ड. फॉर एग्ज़ाम्पल, अब अगर एक स्टूडेंट की मुझे किसी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन फॉर्म के अंदर उसके प्रीवियस सेमेस्टर के मार्क्स की परसेंटेज की एंट्री डालनी है, तो इट डजेंट मीन कि इंफॉर्मेशन सिस्टम सारे डेटा को पहले मार्क्स की वैल्यू को स्टोर करेगा, फिर उसका सम निकालेगा, फिर उसका परसेंटेज निकालेगा, देन वो देगा. रादर इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारे स्टूडेंट डेटाबेस में ऑलरेडी इन चीज़ों को प्रोसेस करता है सो दैट एट द टाइम ऑफ डिसीजन मेकिंग, एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट, the same data should be readily available to the concerned person. Now further most and hot topic of the MIS is decision. What is decision? If we talk about the decision, then decision is what basically it's a physical force जिसमें हम एक प्रेशर जनरेट करते हैं कि this should be done, no option is there. A decision is basically a kind of force which changes the speed and the direction of the work. So this is the power of decision. If we talk about the classification of decision making process, तो हमारा जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसको हम कई पैरामीटर्स में, कई टर्म्स में एनालाइज करते हैं, क्लासीफाई करते हैं. फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर इज स्ट्रैटेजिक, दैट इज द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स एज वेल एज रिसोर्सेज एंड पॉलिसीज. लॉन्ग टर्म की जब हम बात करते हैं, इट मीन्स हमारे वो डिसीजंस जिसमें मिनिमम समटाइम 1 ईयर, समटाइम 2, 3, 8, 10 एंड समटाइम इवन 15 ईयर्स की प्लानिंग इन्वॉल्व होती है. स्ट्रैटेजिक डिसीजन ऑल्सो इन्वॉल्व्स द रिसोर्सेज, द रिक्वायर्ड पॉलिसीज दैट हेल्प्स टू परफॉर्म स्ट्रैटेजिक डिसीजन. अनदर पैरामीटर of decision making is management control. Management have a proper monitoring mechanism for the proper utilization of the resources as well as performance according to the required resources. Knowledge level. Another classification of decision making can be evaluated in terms of
knowledge level. The person who is going to take on decision, the judgment is basically evaluated in terms of the knowledge level of that particular person. उसके potential पे depend करता है, how much he or she is innovative and how much knowledge he or she is having. Another is operational, that is how to carry out specific day to day task. डिसीजन मेकिंग में जब हम बात करते हैं तो डिसीजन मेकिंग जैसे अभी हमने बात की है, लाइक स्ट्रैटेजिक जो कि हमारी लॉन्ग टर्म डिसीजन है, कुछ डिसीजन मैनेजमेंट के हाथों में होता है, कुछ कंसर्न पर्सन की नॉलेज पर डिपेंड करते हैं और कुछ हमारे डे टू डे ट्रांजेक्शन से रिलेटेड होते हैं. सो ऑन दैट बेसिस वी बेसिकली वी कैन क्लासीफाई द डिसीजन मेकिंग. करियर का डिसीजन, मैरिज का डिसीजन, दे आर द बेसिकली एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रैटेजिक काइंड ऑफ डिसीजन. किसको मैनेजमेंट चाहता है हायर करना, किसको निकालना चाहता है, दैट इज ऑल्सो द मैनेजमेंट कंट्रोल. नॉलेज लेवल, इट इज इट डिपेंड्स अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडिविजुअल पर्सन. ऑपरेशन जो भी डे टू डे ट्रांजेक्शनल इश्यूज अराइज होते हैं, दैट उसमें जो इन्वॉल्वमेंट या जो जजमेंट की ज़रूरत होती है, दैट बेसिकली कम्स अंडर द ऑपरेशनल लेवल. नेक्स्ट कम्स, हम अब MIS की पावर को एनहेंस करने के लिए हम फर्दर क्लासीफाई करने जा रहे हैं डिसीजंस को. कितने टाइप्स के डिसीजंस होते हैं? फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चर्ड, सेकंड वन इज सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड द लास्ट वन इज अनस्ट्रक्चर्ड. व्हेन वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर्ड काइंड ऑफ डिसीजन, then structured decisions are repetitive as well as routine by nature. They are having definite procedure of doing the things, and certainty is the important ingredient of structured decision. जब चीज़ें structured की जाती हैं तो वो definite होती हैं, और कभी कभी definite होने के साथ साथ वो repetitive in nature भी होती है. It means जिसके regarding full fledged planning की गई है, that kind of decision comes under the category of structured decision. Semi structured, one or more factors not structured, और वो डिसीजन जिसमें कुछ रिस्क इन्वॉल्व है, जो कुछ तो प्लान्ड है और कुछ अभी प्लान्ड नहीं है. सच काइंड ऑफ डिसीजंस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सेमी स्ट्रक्चर्ड. मैं कल ऑफिस आ भी सकती हूँ और नहीं भी आ सकती हूँ, कुछ प्लान्ड है, आ सकती हूँ या नहीं आ सकती हूँ, बट फिर भी अभी डायलेमा है, कुछ कन्फ्यूज़न है. इस टाइप के डिसीजंस जो है, that is semi-structured. Unstructured, that are unique, non-routine or uncertain, which requires your immediate judgment of the manager. Such kind of decision is said to be the unstructured. बेसिकली अगर हम बात करें एक मैनेजर की स्किल्स की, तो स्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड डिसीजन काइंड ऑफ जो डिसीजंस है, दैट एनी काइंड ऑफ मैनेजर कैन हैंडल इट वेरी इजीली. बट वो चीज़ जो ऑल ऑफ ए सडन आ जाती है, नॉन रूटीन मैनर में अराइज हुई है, और उसका इमीडिएट एक कंक्रीट डिसीजन देना, इट रिक्वायर्स एन इमीडिएट जजमेंट ऑफ द मैनेजर. So basically our manager is said to be the situational manager. So unstructured decision making is an important parameter to judge the caliber as well as capability of a manager. फर्दर अब हम मूव होने जा रहे हैं कि कितने लेवल्स हैं एंड हमारे इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के, एंड हाउ वी कैन क्लासीफाई द काइंड ऑफ डिसीजन अकॉर्डिंग टू देयर लेवल्स. जब हम बात करते हैं लेवल्स की, तो लेवल्स हमारी 4 कैटेगरी में स्पेसिफाई किए जाते हैं. फर्स्ट वन इज़ स्ट्रैटेजिक, नेक्स्ट वन इज़ मैनेजमेंट, नेक्स्ट वन इज़ नॉलेज, एंड द लास्ट वन इज़ ऑपरेशनल. These are the different levels of the information management. और अगर हम बात करते हैं डिसीजंस की, तो डिसीजंस पैरामीटर इंटरसेक्ट करते हैं डिफरेंट लेवल्स को डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पर. टाइप्स ऑफ डिसीजन की जब हम बात करते हैं, इट मीन्स स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड. द different levels and decisions of information management collectively stores TPS, that is transaction processing system, OAS, that is office automation system, MIS, that is management information system, KWS,
that is product design system, DSS, that is facility location, ESS, that is new products and new markets, or expert support system. TPS का एग्जाम्पल है हमारा अकाउंट्स रिसीवेबल. डे टू डे जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उन सबको हमारा सारा डेटा अल्टीमेटली कहाँ जाके स्टोर होता है, टीपीएस की, यानी कि ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम. उसका एक एग्जांपल है आपका अकाउंट्स रिसीवेबल. ऑफिस में जो भी हमारा टाइम चार्ट होता है, कौन करेगा, कब करेगा, क्या करेगा, कैसे करेगा, इसके रिगार्डिंग हमें एक शेड्यूल बनाना पड़ता है. दैट इलेक्ट्रॉनिक शेड्यूल इज बेसिकली एन एग्जाम्पल ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम. कॉस्ट ओवररन हो रही है ड्यूरिंग प्रोडक्शन टाइम, इट मीन्स प्रोडक्शन कॉस्ट ओवररन्स. बजट प्रिपरेशन, ये सब हमारा किस में कवर किया जाता है, MIS के अंदर. DSS डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का एग्जांपल है फैसिलिटी एंड लोकेशन. कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हमने प्रोवाइड की हुई है हमारे सबऑर्डिनेट्स को, सो दैट इट विल हेल्प देम टू लोकेट, टू take on any decision. Expert support system is highly responsible, or it revolves around the new product as well as new market. Knowledge based system जो है ये हमारे प्रोडक्ट के डिज़ाइन के अराउंड रिवॉल्व करता है. So these are the different levels as well as types of decision which intersect at a point of time of the information management system. फर्दर वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डिसीजन मेकिंग. कैसे हमारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आगे बढ़ता है, कहाँ से शुरू होता है, कहाँ जाके ख़त्म होता है. हेयर वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द डिसीजन मेकिंग, एंड इन दिस स्टेजेस द फर्स्ट वन इज इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस इन्वॉल्व्स द कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन as well as not only it is concerned with only the collection of the information, rather it also identify the problem. Next parameter of the decision making stages is design. Once you have identified intelligently the problem, that what is the problem, then further you find out in the design phase that how much alternatives are available with us to resolve this particular problem. हमने इंटेलिजेंस फेज में ये जानने की कोशिश की है, इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया कि प्रॉब्लम है क्या, और डिज़ाइन में हम इस चीज़ का, इसके सोल्यूशन डोमेन की तरफ मूव हो रहे हैं कि इस चीज़ को सॉल्व किस किस तरीके से हम कर सकते हैं. और यहाँ एक नहीं, हम एक से ज़्यादा ऑल्टरनेटिव्स को स्टडी करते हैं ताकि उसकी डिफरेंट इफेक्टिवनेस को हम इवेल्यूएट कर सकें डिफरेंट लेवल्स पर. नेक्स्ट वन इज चॉइस. वी यूज़ डिफरेंट काइंड ऑफ क्राइटेरिया टू इवेल्यूएट दैट विच ऑल्टरनेटिव, जो हमने डिज़ाइन में 4 या 5 जितने भी हमारे ऑल्टरनेटिव्स हमने डिज़ाइन किए हैं, प्लान किए हैं रिगार्डिंग द सोल्यूशन ऑफ ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम, उनमें से विच सोल्यूशन इज सेट टू बी द बेस्ट वन इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ अदर रिक्वायर्ड पैरामीटर्स. सो ऑल दीज थिंग्स आर इवेल्यूएटेड इन टर्म्स ऑफ चॉइस फेज. नेक्स्ट वन इज इम्प्लीमेंटेशन, दैट इज पुट द डिसीजन इन टू इफेक्ट, that is allocate resources and control these resources. until and unless हमारी ये सारी फेज़ें इम्प्लीमेंटेशन फेज तक नहीं पहुँचेगी, तब तक हम अपने डिसीजंस को फाइनल लेवल तक नहीं ले जा सकते हैं. तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ द एंटायर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन. सो फाइनली द materialistic answer of any decision is it comes out under the implementation phase. So in a nutshell, we are going to cover the stages of the decision making. First one is intelligence, second one is design, third one is choice, and the last one is implementation. These are the different stages that helps the decision maker to take on the useful decision. Now further we are going to cover different models of the decision making. There are lots of models available, that is rational, satisfying, muddling, and psychological. When we talk about the rational kind of decision making model, it involves the comprehensive and rationalized alternative, and these alternatives are evaluated time to time. हमारे कुछ decisions ऐसे होते हैं that is near to that of the satisfied level,
गुड ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं. तो गुड ऑल्टरनेटिव्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ satisfying model. Muddling, that is successive comparison. We keep on comparing different one kind of decision with that of the past one decision. So whatever kind of marginal changes are encountered, this is the part of muddling. Psychological, that is managers differ in how they make. One manager is different from that of the another kind of manager in terms of its decision making style, that includes their psychological issues. In the initial level we have talked about कि किस तरह से हमारा मैनेजर जो हैं, हमारी कंपनी के जो मैनेजर हैं, that act as a nerve center of the information processing system. तो बहुत सारा रोल प्ले किया जाता है हमारे मैनेजर्स के थ्रू इस पूरी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में. वी विल डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट वन इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. नेक्स्ट वन इज कंप्यूटर लिटरेसी, information competency. These are the three parameters that a manager has to manage during planning, organizing, leading and controlling. हमारे मैनेजर्स को जो है डिफरेंट रोल्स प्ले करने पड़ते हैं ड्यूरिंग डिसीजन. जब वो डिसीजन लेते हैं क्या करना पड़ता है? सबसे पहले उनको अवेलेबल इंफॉर्मेशन को यूज़ करना पड़ता है एंटरप्रेन्योर की तरह. रिसोर्स एलोकेशन करना पड़ता है. डे टू डे ऑफिशियल रूटीन वे में जितने भी डिस्टर्बेंसेस अराइज होती हैं उसको हैंडल करना पड़ता है. एंड नेगोशिएशन इज़ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनी डिसीजन मेकर. इफ अ पर्सन हु इज एक्टिंग एज ए डिसीजन मेकिंग in the organization and he or she is not a good negotiator, so it will directly affect their decisional roles. Another important parameter in the personality of our manager is interpersonal roles, that is information used for ceremonies, motivation and networking. एक अच्छी इंटरपर्सनल स्किल्स को शो करके हमारे मैनेजर जो हैं अब पूरी की पूरी टीम को मोटिवेट कर सकते हैं, उनको सोशल नेटवर्किंग में बाउंड कर सकते हैं और सोशल गैदरिंग में पार्टिसिपेट करके हम एम्प्लॉयज़ को थोड़ा एक इंटरपर्सनली डील करते हैं. इसके अलावा हमारे मैनेजर को इंफॉर्मेशन रोल्स भी प्ले करने पड़ते हैं, लाइक इंफॉर्मेशन सॉट, रिसीव्ड, जो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने सर्च आउट की है, रिसीव की है, उसको ट्रांसफ़र करना अमंग इनसाइडर एज वेल एज आउटसाइडर. सो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आवर मैनेजर प्ले द रोल एज वेल एज अ इंटरनल वर्कर एज वेल एज एक्सटर्नल वर्कर, जिसको एनवायरनमेंट को भी देखना है, इंटरनल प्रोसेसिंग को भी कंट्रोल करना है, नेगोशिएशन भी करना है, इंफॉर्मेशन को शेयर भी करना है, मोटिवेशन भी करना है टीम को. ईच एंड एवरीथिंग गो थ्रू विद द मैनेजर. दैट इज व्हाई अ मैनेजर इज बेसिकली सेड टू बी द नर्व सेंटर ऑफ एनी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑलवेज कीप ऑन क्लिकिंग इन योर माइंड इज हाउ डू मैनेजर्स यूज इंफॉर्मेशन टू मेक डिसीजन. इंफॉर्मेशन सिस्टम जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर हमारा MIS हाईली फोकस करता है, हम उसको बनाते समय उसमें क्या डेटा स्टोर करना है, कैसे उसको ऑर्गेनाइज करना है, कैसे उसको मैनेज करना है, कैसे उसको अपडेट करना है, ये सारे इश्यूज हमने इंफॉर्मेशन सिस्टम जो हमारा लास्ट सेशन था उसमें कवर किया है. बट इस अवेलेबल इंफॉर्मेशन सिस्टम को हमारे मैनेजर्स किस टाइप से अपने डिसीजन मेकिंग में यूज़ करते हैं, अब हम इसके ऊपर एक डिस्कशन करने जा रहे हैं. सो आवर मैनेजर्स बेसिकली मेक यूज़ ऑफ परफॉर्मेंस. हमारे मैनेजर्स जो हैं परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट करते हैं, चाहे वो पर्सन है या प्रोसेस है या प्रोडक्ट है, जिसके भी हम रिगार्डिंग बात कर रहे हैं. एक मैनेजर की जजमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जिस चीज़ की वो जजमेंट करने जा रहा है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है. अब परफॉर्मेंस को भी हमने फर्दर क्लासीफाई किया है. अब परफॉर्मेंस अगर हमारी डेफिशिएंसी है, अब परफॉर्मेंस डेफिशिएंसी इज़
एक्चुअल परफॉर्मेंस बीइंग लेस देन द डिजायर्ड परफॉर्मेंस। अगर किसी एम्प्लॉय की या किसी के पर्टिकुलर प्रोसेस की आउटपुट लेस देन एक्सपेक्टेड है, सो उसको हमारा मैनेजर क्या क्लासिफाई करेंगे, डेफिशिएंसी परफॉर्मेंस। अ परफॉर्मेंस अपॉर्चुनिटी, अगर हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारी एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस से बेटर आ रही है तो इट मीन्स इट्स अ परफॉर्मेंस अपॉर्चुनिटी। प्रॉब्लम सॉल्विंग, नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, दैट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अ डिस्क्रिपेंसी between actual and the desired performance and taking corresponding action to resolve it। अगर हमारे जो इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज़ करके हमारे मैनेजर्स उसको सॉल्व करना चाहते हैं प्रॉब्लम को, तो उनको डिस्क्रिपेंसीज को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि एक्चुअल में है का क्या प्रॉब्लम और क्या उसकी डिजायरनेस है। Next is a decision is what basically a choice among possible alternatives or during the course of action। So managers जो हैं इन्हीं पैरामीटर को यूज़ करके, that is the performance, problem solving, different choices को evaluate करके हमारे managers जो हैं decision making process को smooth बना सकते हैं। How do managers use information to make decision? इसी के रिगार्डिंग अगर हम आगे बात करते हैं तो इसमें बात आती है हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टाइल की। वी हैव ऑलरेडी टॉक अबाउट दिस थिंग एज यू पीपल आर ऑलरेडी अवेयर दैट अ मैनेजर वन ए काइंड ऑफ मैनेजर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द बी काइंड ऑफ मैनेजर ओनली इन टर्म्स ऑफ देयर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टाइल। अगर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टाइल के बारे में बात करते हैं तो उसके बेसिस पे भी हमारे मैनेजर्स को हमने डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। One kind of managing problem solving style is problem avoider। हमारे कुछ डिसीजन मेकर्स ऐसे होते हैं जो प्रॉब्लम्स को अवॉइड करते रहते हैं, वो सोचते हैं कभी ना कभी तो कुछ हो ही जाएगा। दे आर इनएक्टिव इन इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं करते वो जो प्रॉब्लम अवॉइडर्स होते हैं। Problem solvers, they are highly reactive not only in gathering information rather in resolving the problem। Problem seeker, another category of decision makers is problem seeker। They are proactive, ज़रूर से ज़्यादा उत्साहित होते हैं कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचने के लिए जो अभी अराइज ही नहीं हुए हैं। They basically anticipate the problems and opportunities and taking appropriate action to gain an advantage। So these are the basically three categories, that is problem avoiders, problem solvers, problem seekers in the decision making style। There is a systematic versus intuitive thinking also, जो कि एक बहुत important role play करती हैं जब हमारे managers decisions build up करते हैं। और systematic versus intuitive thinking involves those approaches that helps in the solution of a problem in a stepwise and analytical fashion। Intuitive thinking approaches the problem in a flexible and spontaneous fashion। जब हम बात करते हैं intuitive thinking की तो हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो टाइम टू टाइम इन ए कंटिन्यूस मैनर सॉल्व होती चली जाती है। मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग अप्लाइज बोथ इंट्यूटिव एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग। And the last one is effective multidimensional thinking requires skills at the strategic opportunism। So these are the different systematic versus intuitive thinking style which helps in the decision making process। अब हम अगर बात करते हैं फर्दर लाइक किस टाइप के स्टेप्स हम फॉलो करते हैं एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एट द मैनेजरियल लेवल। तो देर आर डिफरेंट स्टेप्स इन मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। फर्स्ट वन इज जब भी आपको किसी चीज़ के रिगार्डिंग डिसीजन लेना है तो फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, फाइंड एंड डिफाइन द प्रॉब्लम। फर्स्टली फाइंड आउट कि प्रॉब्लम है क्या, ना केवल है क्या रादर उसको डिफाइन भी करना है आपको। तो स्टेप वन में हम क्या करते हैं, फाइंड एंड डिफाइन द प्रॉब्लम।
सेकेंड स्टेप, जनरेट एंड इवेल्युएट द ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस। उस प्रॉब्लम को जिसको आपने फर्स्ट स्टेप में आइडेंटिफाई किया उसको सॉल्व करने के लिए या रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास कितने पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, ना केवल इसके बारे में सोचना, ज़्यादा उनमें से एक ऑल्टरनेटिव को चूज़ करके आपने आपने उसको फाइनलाइज लेवल तक ले जाना है। स्टेप 3 में यू विल हैव टू मेक डिसीजन एंड कंडक्ट एथिक्स, दैट इज़ द क्रॉस चेक करना है आपने कि आपने जिस 4 ऑल्टरनेटिव्स अगर आपने स्टेप 2 में फाइंड आउट किए हैं तो आपने एक एक ऑल्टरनेटिव को वैल्यूट करना है इन टर्म्स ऑफ एथिक्स, इन टर्म्स ऑफ कंडक्ट, उसको क्रॉस चेक करना है डिफरेंट लेवल पर। देन इन द फाइनल स्टेप, दैट इज द फोर्थ स्टेप, you have to finally implement the decision out of 4 decision that you have taken in the step 2। तो स्टेप 4 में हम जितने भी ऑल्टरनेटिव्स हमने स्टेप 2 में फाइंड आउट किए थे उसमें से एक निकाल के उसको एक्शन वे में कन्वर्ट कर देना है। अब वो डिसीजन हमारा इम्प्लीमेंट हो चुका है। इन द लास्ट स्टेप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हमने उसके रिजल्ट्स को इवेल्युएट करना है और इस सारी साइक्लिक प्रोसेस को हम रिपीट करते जाएंगे जब तक रिक्वायर्ड है, राइट। फर्दर वी आर गोइंग टू क्लासिफाई our decision in terms of classical model as well as in terms of behavioral model। अब हम बात करते हैं क्लासिकल मॉडल की। क्लासिकल मॉडल्स के क्या पैरामीटर है, हमारा एक डिसीजन कब क्लासिकल मॉडल की कैटेगरी में आता है, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसके हिसाब से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है वो क्लासिकल मॉडल को बिलोंग करता है या बिहेवियरल मॉडल को बिलोंग करता है। व्हेन वी टॉक अबाउट द क्लासिकल मॉडल, इट मीन्स हमारा जो डिसीजन है वो एक स्ट्रक्चर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज किया जा रहा है। क्लासिकल मॉडल हाईली फोकस ऑन टू द स्ट्रक्चरिंग ऑफ द प्रॉब्लम। सेकेंड पैरामीटर ऑफ क्लासिकल मॉडल इज क्लियरली डिफाइन द प्रॉब्लम। फर्स्ट पॉइंट क्या था, स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम। Second one is clearly define the problem. Third parameter of classical model is certain environment. If you want to solve a particular problem, then you have to build the suitable environment for the same. Next parameter is complete the information system. Next one is all alternatives and consequences should be known in advance. These are the important ingredient and parameters of classical model। अगर आपका डिसीजन जिसके रिगार्डिंग आपको डिसीजन मेकिंग करनी है इन चारों पांचों पैरामीटर्स में से को बिलोंग करती है, इट मीन्स आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्लासिकल मॉडल की तरफ मूव हो रहा है। और यहाँ पर हमारे जो डिसीजन हैं ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड होते हैं क्योंकि आप चूज़ करते हो बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स अमंग ऑल ऑल्टरनेटिव्स। फर्दर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बिहेवियरल मॉडल्स, दैट इज अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम। इट इज जस्ट अपोजिट टू दैट ऑफ द क्लासिकल मॉडल। क्लासिकल मॉडल में स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम को डील किया जाता था, बिहेवियरल मॉडल में अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम को डील किया जाता है। क्लासिकल मॉडल में क्लियरली डिफाइंड प्रॉब्लम्स होती हैं, इसमें बिहेवियरल मॉडल में नॉट क्लियरली डिफाइंड प्रॉब्लम्स होती हैं। बिहेवियरल मॉडल में हमारा एनवायरनमेंट जो है वो सर्टेन नहीं होता है, इन्फॉर्मेशन भी इनकम्प्लीट होती हैं और हम सारे ऑल्टरनेटिव्स को ट्राई नहीं कर पाते, सभी ऑल्टरनेटिव्स के कंसिक्वेंसेस हमें मालूम नहीं होते हैं, बट स्टिल हम डिसीजन करते हैं अकॉर्डिंग टू बिहेवियरल मॉडल। बट जो हमारा डिसीजन निकल के आता है वो सेटिस्फाइंग लेवल तक पहुंच पाता है, वो ऑप्टिमाइज नहीं हो पाता है। सो हमारा बिहेवियरल मॉडल हाईली फोकस ऑन टू द चूजिंग दैट फर्स्ट ऑल्टरनेटिव विच कुड सेटिस्फाई द बेसिकली रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर और यूज़र। उसके डिसीजन उसके रिगार्डिंग हम जो भी डिसीजन कर रहे हैं कस्टमर या क्लाइंट के रिगार्डिंग, वो हमारा एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल को अचीव करता है जब हम बिहेवियरल मॉडल को फॉलो करते हैं। एंड व्हेन वी मेक आवर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एज अ क्लासिकल मॉडल अप्रोच की तरह हम फॉलो करते हैं तो हमारा जो डिसीजंस हैं वो एब्सोल्यूट बेस्ट अमंग ऑल ऑल्टरनेटिव्स की फॉर्म में की कैटेगरी में लाई करता है। So our manager is basically acting as a decision maker, right? Now
हेयर इज़ अ डू इट योर सेल्फ एक्सरसाइज। आपको दोनों क्वेश्चंस के रिगार्डिंग 10 पॉइंट्स बना के लाने हैं। व्हाट आर द डिफरेंसेस इन द क्लासिकल एंड बिहेवियरल मॉडल ऑफ मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। सेकेंड क्वेश्चन इज राइट द स्टेप्स इन मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है इन दोनों क्वेश्चंस के रिगार्डिंग तो वो भी आप इन दो क्वेश्चंस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। थैंक यू।